PSR एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। पर विनम्रता से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे, आपके प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए कि संपूर्ण विपक्ष चाहता है, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी जी, मैं समझ गया। संपूर्ण विपक्ष चाहता है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चले, जैसा आप भी चाहते हैं। मेरा एक सुझाव है 267 पर, उस पर मैं स्पष्ट ओपिनियन दे चुका हूं। आप एक देखें ना, जी। इस पे जो रूलिंग है, जो वर्डिंग है, साफ है। जब देश के लोकतंत्र प्रमोद जी, मैंने उस पर रूलिंग दे चुका हूं। मैं रूलिंग दे चुका नहीं। खतरा हो, फिर शिवाजी याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। It is not a surprise. The election commissioner, present election commissioners are chosen by Mr. Amit Shah. They are all Amit Shah's men. Therefore, Mr. Amit Shah controls the whole election commission now. His choices are the people who are controlling the election commission. Therefore, they will always protect their masters. Their master is Amit Shah. Therefore, the present election commissioners will question like this only. We all know that truth has come out now. Mr. Rahul Gandhi ji, the leader of opposition, has asked genuine questions with the document of the election commission. Hope that the election commission comes out clearly, and we want a discussion in the parliament on the vote deletion issues. Vote deletion issues are very serious things. Leader of opposition is not allowed to speak in parliament. Therefore only he briefed the media yesterday. He briefed the India Alliance leaders yesterday, and he demanded that there should be discussion in the parliament. Today he is having a march to Karnataka Election Commission office. We will continue to raise these issues, which is against democracy. The way Mr. Amit Shah and Modi wants to control the electoral mission is unacceptable. India's poor should not be cheated by these things. In Bihar elections, they are taking away 12% of the votes. In Karnataka, they are taking 13% of the votes, like adding 13% of votes, which is unbelievable, and this is against democracy. The Election Commission is an autonomous body. They must gain and retain the trust of the people of India. Once the trust in the Election Commission goes, then the faith in elections and in the democratic exercise will also erode. It's very important that the players trust the umpire and the audience also trusts the umpire. Yesterday, the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, made a very detailed presentation. Instead of hiding behind bureaucratic procedures, fill in this form, give an affidavit, the Election Commission must point by point reply to the charges of Mr. Rahul Gandhi. The first question asked is, why is the Election Commission so reluctant to give the voters list in a machine-readable format? Today we are talking about bringing in technology into everything. Digital payments, bank statements online, everything is digital now. When everything is digital, why is the Election Commission so reluctant to give the machine-readable format of the electoral rolls? This will allow us to analyze it much swifter and to point out the deficiencies in it. And what is surprising is, why is the BJP defending the Election Commission? The Election Commission is an independent body. When we want to discuss SIR in Parliament, they say Election Commission is an independent body and no minister can answer for it. So why is the BJP? We are not making any allegation against the BJP. We are only pointing out the deficiencies of the Election Commission. The Election Commission has got its own bureaucracy, has got its own staff, has got its own spokesperson. They can reply. Why is the BJP getting angsty about this? Why are they getting anxious about this? What is the interest of the BJP to defend the Election Commission or to speak for the Election Commission? The Election Commission must reply point by point to the charges raised by Mr. Rahul Gandhi yesterday in his press conference.
पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको। इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे, वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। हम सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर, जब सरकार सदन चल रहा है, इतने सारे साक्ष्य हैं। अरे सदन में सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो SIR पे चर्चा करें। इस पे क्या चर्चा करेंगे? एकदम कमजोर हो गई है ये सरकार, सदन नहीं चला पा रही है। और सदन चलाने में इतनी मुश्किल नहीं है, बैठिए सबके साथ, कहिए हम चर्चा कर लेंगे। चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी बात रखिए, सब सुनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, बात खत्म। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया वो एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया गया हिम्मत भरा कदम है। कौन से डॉक्यूमेंट है वो? इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट तो है। उन्होंने सारे तथ्य रख दिए हैं। जो 5 पॉइंट उनका सत्यता उन्होंने ऑन स्क्रीन रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी। अब बाल पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। अब देखना है कि वो अपनी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सबसे बड़ी बात प्रतिष्ठता कायम रखने के लिए इन आरोपों का सिलसिलेवार खंडन करते हैं। इस पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है जब वो कहें कि एफिडेविट पे दें। अरे आप ही के डॉक्यूमेंट आपको दे रहे हैं, सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आप उस पर क्लेरिफाई करिए। पूछ कौन रहा है? लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा। तो अब तो स्पष्ट करना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन अगर स्पष्ट नहीं करेगी तो फिर तो ये आरोप लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, गिरफ्त में है। हिम्मत नहीं पड़ रही है कंट्राडिक्ट करने की। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो 25 सीटें ऐसी जहाँ 30,000 का मार्जिन रहा है, तो क्या आप चाहेंगे कि इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कैसे आप आगे बढ़ेंगे? देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब
आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज़ में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Various state election Have also? various state election commissions have come out and they have said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now various How do they know it's wrong? How do they know it's wrong? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it? There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are in power. And then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. देखिए, अब इससे ज्यादा पहले चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कह रही थी सबूत दो। कल राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दी, कर्नाटक के एक जिले के एक विधानसभा का जो लंबी फाइल जो चुनाव आयोग ने दी है, वो 7 फीट है। 6 महीने लगे उसके वेरिफिकेशन में। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि भाई कुछ लोग डबल वोटर हैं, 5-5 जगह वोटर है, कुछ की तस्वीर नहीं है, कुछ का एड्रेस नहीं है। और हम लोग फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल तो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा हमें मुहैया कराइए, हमें सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराइए। अभी के वेरिफिकेशन में 6 महीने लगे हैं एक विधानसभा में, आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा मुहैया कराइए ना। हम लोग सबूत तो दे रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? आप सदन से मुंह क्यों छिपा रहे हैं? आप सदन में चर्चा करवाइए ना। तो राहुल जी ने सारे दस्तावेज सबूतों के साथ बोला है, चुनाव आयोग का फर्ज बनता है इनका जवाब दे और जवाबों से मत भागे। ये आरोप ने जानकारी दी, ये जानकारी पब्लिक से आप भी सुनते होंगे, हम भी जानते हैं कि जहाँ पे वोट किसी एक पार्टी को मिलना चाहिए, उसकी वोटें कम होकर दूसरे पार्टी को हो जाता है। आपने वोटर ये ईवीएम में कभी नहीं सुना होगा कि भाई इस बटन को दबाइए और दूसरे छाप में चला जाए। जब भी होता है वो बीजेपी के छाप में जाता है। कैसे होता है? ये मिरेकल तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक्सपोज किया है, जो आवाम जानती थी उसको बकायदा एग्जाम्पल दिखा के उन्होंने बताया किस तरह धांधली की गई। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.